کیا نواز اور شہباز لیگ بن چکی ہے؟ مریم نواز نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ شہباز شریف کے بیانیے کی کھل کر مخالفت کر دی۔ میثاق معیشت مذاق معیشت قرار۔ مریم کا اپنے پروگرام لانے کا اعلان، کہا چور دروازے سے اقتدار میں آنے والوں سے کوئی میثاق نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی گرتی ساکھ کو سہارا دینا درست نہیں۔ سوال اٹھایا کہ اداروں کو سیاست میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میاں صاحب کی صحت کی جو ایک بہت سیریس سچویشن ہے، اس کو میں عوام کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا رہی ہوں۔ نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہم مرسی بننے دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی نے ملکی سیاست میں طبلِ جنگ بجا دیا، کہا یہ مصر نہیں، نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دیں گے۔ مریم نواز کا والد کے دفاع میں آخری حد تک جانے کا اعلان۔ نیوز کانفرنس میں کہا معلوم نہیں طبیعت خرابی کے باوجود میاں صاحب کو ضمانت کیوں نہیں دی گئی، معیشت برباد کرنے والے جواب دیں۔ نون لیگ 2 بیانیوں میں پھنس نہیں گئی صرف، بلکہ ان 2 بیانیوں میں دھنس گئی ہے۔ اور آج کی گفتگو کے بعد مریم صفدر صاحبہ کو اپنے چچا سے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی طلب کر لینا چاہیے تھا۔ نون لیگ 2 بیانیوں میں دھس گئی۔ مریم نواز نے اپنے چچا کے خلاف نوحہ پڑھا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کا جوابی وار، کہا قطر کے شاہی خاندان کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ سزا یافتہ راج کماری لیکچر دے رہی ہیں۔ میثاق معیشت پر تجاویز سامنے آئیں تو اپوزیشن سے بات کریں گے، حکومت پہلے اپنا موقف واضح کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مطالبہ، کہا پہلے کبھی NRO نہیں مانگا تو اب کیوں مانگوں گا۔ شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہلی تقریر میں انہوں نے چارٹر آف اکانومی، واٹر اور ادر ایشوز کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ کے رویے ٹھیک ہوئے تو پھر یہ چارٹر آف اکانومی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے میثاق معیشت پر بات کی۔ رویے ٹھیک نہ ہوئے تو ایک میز پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ نون لیگی رہنما ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، شاہد خاقان نے ملکی مسائل کی جڑ گزشتہ الیکشن کو قرار دیا۔ حکومت میثاق معیشت کے لیے تیار، پہل کون کرے گا؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو انتظار۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کا وزیر اعظم سے اپوزیشن سے رابطہ کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے جلد خصوصی کمیٹی بنانے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور امیر قطر کی 1 on 1 ملاقات، 2 طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط۔ امیر قطر کی آمد پر وزیر اعظم نے استقبال کیا، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ 21 توپوں اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی سلامی دی گئی۔ دیرپا امن اور استحکام حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ امن و امان کی یہ صورتحال اب کوئی نہیں چھین سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لندن میں انٹرنیشنل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں امن کا دار و مدار تنازعات کے حل میں ہے۔ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، افغان امن عمل کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عزم، لاہور پروسیس کانفرنس میں خطاب، کہا مشترکہ دشمنوں نے 2 طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے FATF اعلامیے پر دیے گئے بھارتی بیان کو مسترد کر دیا۔ بھارت کا بیان ایک مخصوص سوچ کا عکاسی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا پاکستان نے اپنے خدشات FATF سے شیئر کر دیے ہیں۔ حیدرآباد ٹرین حادثے کے بعد ایک اور حادثہ، لاہور میں تیزگام ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ٹرینوں کا شیڈیول شدید متاثر، حیدرآباد حادثے کا ذمہ دار کون؟ وزیر ریلوے شیخ رشید نے جزا و سزا کے لیے مزید 15 دن کا وقت دے دیا۔
कैमरा उठाएंगे, उठा लेंगे, उठा लेंगे, उठाएं, उठाएं जी, आप लोग। इसको प्लीज, किस्म के बदमाशी बनाई हुई चाहे हमें अपना काम करें, और ले जाओ बताना भी नहीं चाह रहे हैं, लोग परेशान हैं। ट्रेनों के हादसात कब खत्म होंगे, ट्रेनें बर वक्त पटरी पर कब आएंगी? जीएम रेलवे को आज न्यूज का सवाल पसंद न आया। लाहौर के नुमाइंदे सईद बलोच से बदसलूकी की। सरफराज अहमद को कुछ पाकिस्तानी कैप्टन को कुछ कह रहा था जो जायज़ नहीं था, और मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ जो भी ऑफेंडेड हो इस पूरे वाक़या से। पीटीआई रहनुमा के निराले काम। नईम उल हक ने वजीर आजम की तस्वीर की जगह सचिन तेंदुलकर की तस्वीर ट्विटर पर लगा दी। अपने तो अपने पड़ोसी मुल्क भारत में भी लोग मजाक उड़ाने लगे। जेहलम में पाकिस्तानी निजात अतालवी दुल्हे को दूसरी शादी महंगी पड़ गई। पहली बीवी बच्चों समेत मैरिज हॉल में पहुंच गई, शौहर के ख्वाब अधूरे रह गए। अमरीकी 9 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत में मिसाके मईशत पर उठने वाले तूफान की, जिसमें मरियम नवाज के बयान ने मजीद भूचाल पैदा कर दिया है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि मिसाके मईशत मजाक मईशत है। मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले मिसाक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की अपनी सोच है और उनकी अपनी। मरियम नवाज ने यह भी वाज़ेह किया कि ना ये मिस्र है और ना नवाज शरीफ को मुर्सी बनने देंगे। शहबाज साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं। उन्होंने जो मिसाके मईशत की बात की है, उनकी एक अपनी राय है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। मियाँ साहब की सेहत की जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, उसको मैं आवाम के सामने रख रही हूँ। मैं 22 करोड़ आवाम को गवाह बना रही हूँ। ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। मरियम नवाज ने आज अपनी ही जमात पर खुदकुश हमला कर दिया। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बरस पड़ी। कहा कि उनका मिसाके मईशत को मजाक करार देना अपने चचा शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाना है। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी कहकर मुखातिब किया। उनका कहना था कि आज उन्होंने जो सफ़े मातम बिछाई, इस पर सबसे पहले अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा। नून लीग 2 बयानियों में धंस गई है और आज की गुफ्तगू के बाद मरियम सफदर को शहबाज शरीफ से पार्टी की सदारत से इस्तीफा भी तलब कर लेना चाहिए था। सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। उनकी मिसाके मईशत को मजाक करार दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने चचा का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही कि वो इससे डिसएग्री करती हैं। आज उन्होंने जो सफ़े मातम बिछाई और सफ़े मातम पे बैठ के सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा। एक हकीकत खुल के सामने आ गई कि नून लीग 2 बयानियों में फंस नहीं गई सिर्फ, बल्कि उन 2 बयानियों में धंस गई है। आज की गुफ्तगू के बाद मरियम सफदर साहबा को अपने चचा से पार्टी की सदारत से इस्तीफा भी तलब कर लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म मिसाक़े मईशत पर अपोजिशन को एतमाद में लें। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं तजावीज़ सामने आएंगी तो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन से बात करेंगे। 8 साल NRO नहीं मांगा तो अब क्यों मांगेंगे? पहले प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा फुल अपना कॉन्सेप्ट दें, फिर हम उसको बात करेंगे पार्टी में। फिर दूसरी अपनी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं हमारे साथ अपोजिशन में बैठी हैं, उनके साथ बात करेंगे, फिर उनको जवाब। 8 साल 3 महीने पहले नहीं मांगा तो अब क्या मांगेंगे?
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने पहली तकरीर में मीसाक मईशत पर बात की। रवैये ठीक हुए तो मीसाक मईशत पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, वरना एक मेज पर भी नहीं बैठ सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली तकरीर में उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वाटर और अदर इश्यूज का जिक्र किया था। अगर आपके रवैये ठीक हुए तो फिर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो सकती है, और अगर रवैया ठीक ना हुआ तो शायद हम दोस्त, कुलीग्स और भाई बहन एक टेबल पे भी ना बैठ सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले अपना रवैया ठीक कीजिए, ऑपोजिशन को तस्लीम कीजिए और ऑपोजिशन हुकूमत को तस्लीम करें, फिर ही ये आगे मामला चल सकता है। अब जिक्र अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान का। कतर के अमीर तमीम हमद अल सानी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म और अमीर कतर भी मौजूद थे। इससे कबल जब अमीर कतर नूर खान एयरबेस पहुंचे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया। कतरी शाही मेहमान पहुंच गए पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट वेलकम। 21 तोपों की सलामी दी गई। वजीर आजम ने गले लगाया, खुद गाड़ी चलाई और पीएम हाउस पहुंचाया। शेख तमीम बिन अहमद अल सानी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। JF-17 थंडर ने फिजा से सलामी पेश की। अभी आपको लंदन से खबर दें, जहां आर्मी चीफ ने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बेहतर सिक्योरिटी के नतीजे में पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और इसके लिए इलाकाई राब्ते मरकज़ी अहमियत रखते हैं। हम देर पा अमन और इस्तेहकाम हासिल करने के करीब हैं। अमन व अमान की ये सूरत हाल अब कोई नहीं छीन सकता। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार तनाज़ात के हल में है। जनरल बाजवा का कहना था कि इलाकाई चैलेंजेस से निमटने में बामकसद आलमी शराकत, हिमायत और अज़्म अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था 1 जुलाई से किरायों में 6 से 7% इजाफा किया जा रहा है। 50 किलोमीटर तक सफर करने वालों के लिए किरायों में इजाफा नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ने का सबसे ज़्यादा असर जो है वो रेलवे पे हुआ है। इस बुनियाद पर हमने फैसला किया है कि पहली तारीख से इकॉनमी पे 100 रुपये से कम और दूसरी ट्रेनों पे मैक्सिमम मोस्टली 6% किराए में इंक्रीज किया जाएगा। जो टिकटें खरीदी जा चुकी हैं बड़ी ईद तक, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। 50 किलोमीटर तक सफ़र करने वाले के लिए कोई किराया नहीं बढ़ेगा। ट्रेन एक्सीडेंट पे आज सुबह रिपोर्ट इनिशियल आ गई है, वो ह्यूमन एरर डिक्लेयर हुआ है। स्पीड भी उसकी ज़्यादा थी। एक्सप्रेस ट्रेन को एक फ्रेट ट्रेन के साथ ही आधे घंटे बाद नहीं निकालना चाहिए था। एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। लाहौर से कराची जाने वाली तेज़गाम की 3 बोगियां लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन के ट्रैक से उतरने के बाद रेलवे शेड्यूल मुतासिर हो गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद तेज़गाम कराची के लिए रवाना न हो सकी। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ ट्रेन ही ट्रैक से नहीं उतरी, जीएम रेलवे भी पटरी से उतर गए। आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच ने नाकिस कारकर्दगी का सवाल किया तो जवाब देने के बजाय जीएम रेलवे आफ्ताब अकबर हत्थे से ही उखड़ गए।
में अपना काम कर लेने थे, उसके बाद आपको सर आप अपना काम नहीं करते हैं ना, इसीलिए तो ये रोज हादसे हो रहे हैं। काम कर रहे हैं आप इसीलिए तो रोज हादसे हो रहे हैं कि आप लोग काम यार, नहीं कर रहे हैं। अपना कोई काम करने दो, काम कुछ करें। इधर लगाएं कैमरा, करें कैमरा उठाएंगे, उठा लेंगे, उठा लेंगे, हमें अपना काम और ले जाओ। बताना भी नहीं चाह रहे हैं, लोग परेशान है। मेहरबानी क्या होगी? वो अभी काम करने दे सर, और आप लोग काम सही करते ना तो रेलवे का बेड़ा गर्क नहीं होता। हमें पता है।